Praise the Lord. A warm greeting to all of you this morning. God had given one more time that we may spend a few time with this morning to worship the Lord. हम प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। आज की आराधना सभा के लिए सबको स्वागत करते हैं। आइए मिलकर प्रभु को स्तुति करेंगे। एक मिनट अपना हाथों को उठाकर जहां आप बैठा है उठाकर प्रभु के ओर धन्यवाद करेंगे आज का दिन के लिए। Let's give thanks to God for this day because God had given one more day in our life. हमारे जीवन में और एक दिन प्रदान किया, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम आज जीवित है प्रभु की दया से, कृपा से, उनकी पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करें। हमें मिला उद्धार के लिए प्रभु को स्तुति करेंगे। हमें मिला हुआ आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करेंगे। Let us give thanks to God for all the blessings God had given in our life. He is worthy to be praised. His name is above every name. Even though we are passing through much tension and difficulty, and God is faithful. His faithfulness is always with us. He is caring for us. His grace is sufficient for us. Let's give thanks to God for every blessing. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Bless you, Lord. Glorify you, Lord. We honor you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Hallelujah. प्रेज गॉड। अब जहां कहां आपकी घर में बैठा है वहां आप परमेश्वर की स्तुति करते बैठना। प्रेज गॉड। हालेलुया। इस प्रकार एक मौका परमेश्वर ने दिया है उनके सानिध्य में आने के लिए। लेट्स ऑल प्रे टुगेदर। लॉर्ड आवर हेवनली फादर, वी थैंक यू सो मच फॉर दिस डे। थैंक यू लॉर्ड फॉर enabling us to come to thee in the name of Jesus Christ through this Zoom media. We thank you, Lord, for keeping all of us safe past week. Thank you, Lord, for blessing all of us. Thank you for the grace you bestowed upon us. Thank you for saving us. As we are your children, we call you Abba, Father. We come to the Abba in the name of Jesus Christ to give thanks and praise for all what you have done in our life. Thank you for the joy and peace you have given us. Thank you for the protection you have given us. Thank you for every blessing, Lord. This morning we pray, Lord, you speak to us and we want to hear from you, Lord. Thank you, Lord, for accepting our praise and worship. Now, Lord, we pray you speak to us and encourage each and everyone, Lord. We want to hear from you. Open our hearts that we may, grasp the word of God. Help me that I may speak the word with anointing and let the Holy Spirit work in the heart of each and everyone. You commit the whole session in your holy hand. Amen, Lord. All who are hearing the word, through the Zoom media as well as in Facebook, Lord, I bless them. You give them an ear to hear the word of God and let them understand what the word says to them. Oh Lord, speak to us. We give all glory, honor to you. In Jesus Christ's name, we all agree and pray. Amen. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर की सानिध्य में हैं। परमेश्वर ने हमें संभाला है। We are in the presence of God and God is protecting us. His mercy endures forever. Praise God. Hallelujah. Today's my message is how we can have a closer walk with God. Amen. परमेश्वर के साथ कैसा इंटीमेसी में चलना है। परमेश्वर की स्तुति हो। ये 2 दिन में मेरी माइंड में आया हुआ ये बात है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की संग चलना और क्लोजर वॉक विद गॉड, इंटीमेसी से साथ चलना। इंटीमेसी ये जो वर्ड का अर्थ हिंदी में आध्यात्मिकता, मित्रता, तनिष्ठता, हिंदी में, मराठी में जवलिक। प्रेज गॉड। परमेश्वर के जवल, परमेश्वर के करीब आके परमेश्वर के साथ चलने का जो अनुभव प्रभु चाहता हूं। वी शुड हैव ए क्लोज वॉक विद द लॉर्ड। प्रेज गॉड। हालेलुया। पहले हमें जानना है गॉड लव्स अस। परमेश्वर हम सबों को प्यार करते हैं। जॉन 3:16 में हम पढ़ सकते हैं, गॉड सो लव द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने हम सबों को इतना प्यार किया है, अपना पुत्र देकर हमें चुना है, हमें, ताकि हम उस पर विश्वास करने वाले का नाश न हो परंतु वो सार्वकालिक जीवन हम प्राप्त करें। तो गॉड इज ए गॉड ऑफ लव। प्रेज गॉड। परमेश्वर का प्यार के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारी जीवन का सबसे बड़ा प्रायोरिटी that we should walk in the presence of God with an intimacy. Praise God. हम देखते हैं इनोक बाइबल में
Abraham, Moses, Daniel, Job, and the disciples of Jesus, and a tremendous, they all walked in a tremendous intimacy with Jesus. हम प्रभु के दास लोग, भक्त लोग प्रभु की इंटीमेसी में, क्लोजनेस में चला हुआ लोगों को हम देख सकते हैं। जो आध्यात्मिक फील्ड में सक्सेस हो गया है, ये सब परमेश्वर की संग चला हुआ लोग है। अब मैंने गुड न्यूज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारे साथ रहना चाहता हूँ, हमसे क्लोज रहना चाहता हूँ। आज लोगों का सवाल है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर के पास कैसा आ सकते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। हाउ वी कैन हैव ए क्लोजर वॉक विद लॉर्ड। हम परमेश्वर के संग, परमेश्वर के करीब, परमेश्वर की मित्रता से, परमेश्वर की घनिष्ठता से, आत्मीयता में कैसा चले? प्रेज गॉड, हालेलुया। पहला बात, प्रेज गॉड, हम निर्गमन की किताब 33 का 7 to 23 पढ़ेगा, वहां हम देख सकते हैं, praise God, we should have a meeting place with God. This is the secret place of the Most High. Exodus chapter 33, 7 to 23. सब पहले के कई वचन पढ़ेंगे, फिर मैं बताएंगे आगे क्या पढ़ना है। Exodus chapter 33, निर्गमन की किताब 33 का 7. Now Moses used to take the tent and pitch it outside the camp, far off from the camp, and he called it the tent of meeting. And everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. हिंदी में पढ़ेंगे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। आगे बढ़ेंगे। जब मूसा तंबू के पास जाता तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। Amen. Praise the Lord. So here we can see that chapter 33 verse 1, the Lord said to Moses, depart, go up from here, you and the people whom you have brought up out of the land of Egypt, to the land which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying to your offspring, I will give it. I will send an angel before you, and I will drive out the Canaanites, the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Go up to a land flowing with the milk and honey, but I will not go up with among you, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people. परमेश्वर यहाँ कहते हैं, मोसेस को बोला, ये लोगों को लेके चलो, मैं वो देश में वहां की दुश्मनों को हटाकर तुमको देगा, एक एंजल तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला है, क्योंकि तुम बहुत कठोर लोग है, कटीले लोग है. You are a stiff-necked nation, so I can't move amongst you. If I move amongst you, I will consume you, because you are a rebellious people. आप लोग praise God बहुत हड्डीले लोग है, तो तुम्हारे साथ मैं चल नहीं सकता, लेकिन एक स्वर्गदूत तुम्हें चलाएगा, praise God. और वो देश में जो दूध और मधु बहते हैं, कनान देश में लोगों को लेके जाना. मोसेस अभी बहुत प्रॉब्लम में हो गया, लोगों की कठोरता की वजह से परमेश्वर कहते हैं, प्रेज गॉड, मैं तुम्हारे संग नहीं चलेगा, संग आया तो मैं तुम्हें खत्म करेगा. लेकिन मोसेस को एक बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है, प्रेज गॉड, इन लोगों को लेके कैसा मैं जाऊं. तो when the people heard this disastrous word, they mourned. जो परमेश्वर बोला मैं तुम्हारे संग नहीं आएगा, तो लोगों को दुख आया, लोग उधर रोने लगा. और प्रेज गॉड, वहां people strip themselves of their ornaments from Mount Horeb onward. तो परमेश्वर की ये वाणी सुनकर इसराइल लोग अपना अपना गहना ऑर्नामेंट्स पूरा निकाला, फिर वो आगे पहना नहीं, क्योंकि
उसको लगा कि परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि हम घमंड के लिए ऑर्नामेंट्स पहन के बैठा है, तो हम आगे ये नहीं पहनेंगे। तो पूरा ऑर्नामेंट्स उन्होंने उतारा। परमेश्वर की स्तुति हो। उसके बाद हम देखते हैं वर्स 9 में, नाउ मोसेस यूज्ड टू टेक द टेंट एंड पिच इट आउटसाइड द कैंप, far off from the camp, and he called it टेंट ऑफ मीटिंग। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, लोग जो कैंप में परमेश्वर के विरुद्ध बात करते हैं, लेकिन मोसेस ने एक कैंप से थोड़ा दूर मेड ए टेंट फॉर मीटिंग। आमेन। परमेश्वर से मिलने के लिए एक मिलाप वाले तंबू बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाउ टू वॉक विद गॉड। तो हमें परमेश्वर के संग चलना है, इंटीमेसी में चलना है। हर एक व्यक्ति के लिए एक मिलाप वाले तंबू होना है, a meeting place where you and the Lord will be there. Praise God. If you are separating yourself and making a tent separately and going there in a particular time to see the Lord, God will come over there and God will meet you and God will speak to you. Praise the Lord. प्रभु हमारे संग रहना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, आशीष करना चाहता हूं, लेकिन लोगों के पापों की वजह से परमेश्वर हमारे साथ नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज हमें क्या करना है? हर व्यक्ति एक मिलाप वाले तंबू बनाना है। हालेलुया। हम देखते हैं मोसेस मेड ए टेंट एंड पिच्ड इट आउटसाइड द कैंप, far off from the camp, and he called it टेंट ऑफ मीटिंग। प्रेज द लॉर्ड। ये लोगों को मिलने का जगह नहीं है, बल्कि परमेश्वर को मिलने की जगह है। टेंट ऑफ मीटिंग विद गॉड। प्यारो, प्रेज गॉड। प्रभु के संग संग हमें चलना है, प्रभु के क्लोज हमें चलना है, हमें करीब चलना है। यू ऑल हैव टू हैव ए टेंट ऑफ मीटिंग, ए प्लेस वेयर यू मीट योर गॉड। आपकी परमेश्वर को मिलने के लिए प्रेज द लॉर्ड एक सेपरेट हाउस, आपको रूम आपको बनाना है। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। सो प्रेज गॉड, द फर्स्ट की, हालेलुया, ए क्लोजर वॉक विद गॉड, प्रभु का इंटीमेसी में चलना है। प्रेज गॉड, वी शुड हैव ए मीटिंग प्लेस। वहां मोसेस जब जाएगा, ऊपर से बादल आता था, प्रभु का सानिध्य वहां आता था। प्रेज द लॉर्ड। मोसेस को मालूम पड़ा ये लोगों के बीच में परमेश्वर नहीं आएगा, लेकिन टेंट मीटिंग है, वहां परमेश्वर आएगा। मैं परमेश्वर से वहां मिलेगा, परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, परमेश्वर का गाइडेंस मिलेगा और मैं लोगों को चलाएगा। तो आगे हम देख सकते हैं 40 इयर्स की प्रवास में मोसेस ने इस तंबू को भी आमीन अलग अलग जगह में स्थापित कर परमेश्वर से और परमेश्वर का आशीर्वाद पाया, परमेश्वर का मिरेकल्स पाया, परमेश्वर का ब्लेसिंग पाया। Praise God. Today also, to meet the giants, to meet the problem, our tensions, we have to be a camp, a tent, a meeting place with your God. आपकी प्रभु से मिलने की एक मिलाप वाले तंबू आपको बनाना है। Psalms 91:1 में लिखा है, we should have a meeting place with God. This is the secret place of the Most High God. भजन संगीता 91 उसका 1 पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। Every day जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो परम प्रधान की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पंखों के तले, shadows of Almighty, we have to meet him. Praise God. प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। To know a person, we should spend more time with him. एक व्यक्ति के बारे में ज्यादा समझना है तो उनके साथ ज्यादा बैठना जरूरी है। अगर परमेश्वर के बारे में हमें समझना है, if you want a friendship with God, if you want to know the secret of God, you have to be with the Lord alone. आप अकेला प्रभु के सानिध्य में जाना बहुत जरूरी है। Praise God. Hallelujah. Amen. If we spend more time with God, God will reveal his plan to us. We know that Enoch walked with God. Amen. Hallelujah. So God had taken him to eternal home without death. Every day परमेश्वर आता था, प्रेज गॉड, और इनोक को बुलाता था,
इनोक और परमेश्वर मिलके चलता था। कितना दूर चला हमें मालूम, एवरी डे दे हैड ए फेलोशिप विदाउट एनी फेल। तो प्रभु प्रतिदिन हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे संग रहना चाहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं। प्रेज गॉड। नया करार में वी शुड वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलना है। आत्मा चलाने वाला प्रभु का बच्चा लोग है। तो आत्मा की चलावट में हमें चलना है, तो हम आध्यात्मिक बातें परमेश्वर से सीख सकते हैं। तो इनोक वो चल के एक दिन परमेश्वर बोला, प्रेज को बहुत दिन हो गया चला, अभी उसको मेरे घर में आओ। परमेश्वर हानो को अपने घर में उठाया। तो फर्स्ट की that we should have a meeting place when we go, praise God, separately taking time and worship God। हमारे परमेश्वर वहां उतर के आते हैं, बादल आते हैं, क्लाउड आते हैं, होली स्पिरिट आते हैं, there we can have a fellowship, praise God। अभी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। कई लोग एक ही रूम में रहते हैं, पेरेंट्स रहेगा, माँ बाप रहेगा, 4 बच्चा रहेगा, इन-लॉज कोई रहेगा, घर का सामान रहेगा, एक रूम में कहा हम सेपरेट टेंट बनाएंगे। घर का कोई छत नहीं, टेरेस नहीं, यारो प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसका घर बड़ा है उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ, एक रूम अगर सेपरेट कर सकते हैं। जिसको टेरेस में अकेला जा सकते हैं उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे यीशु मसीह पिता से बात करने के लिए अकेला माउंटेन में जा सकता था। प्रेज गॉड। अगर आपको कोई माउंटेन में अकेला जा सकते हैं वहां जाइए, टेरेस है तो वहां जाइए, आपको रूम सेपरेट है तो वहां जाइए। अगर कोई रूम नहीं, एक ही रूम है, आप आत्मा में आराधना कीजिए, अन्य भाषा में बात करें, हृदय में आराधना करें। नया करार का विश्वासी को आमीन, ये रूम कुछ भी नहीं है तो भी प्रेज गॉड आपकी हृदय की गहराई से परमेश्वर से बात कर सकते। यू कैन कीप द इंटीमेसी विद द लॉर्ड। द सेकंड की टू द इंटीमेसी विद गॉड इज वर्शिप। हम परमेश्वर का सानिध्य को अनुभव करना है, हमें आराधना करना है। दिस मॉर्निंग as we are worshiping, we are keeping our intimacy with the Lord। हम प्रभु को देना है। डेविड कहते हैं, I was glad, very glad when they said to me, let us go to the house of God। परमेश्वर की भवन में जाएगा, मैं बहुत खुशी था, बहुत आनंदित था। देखो वहां आनंद है, आराधना में आनंद है। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी आराधना करें। जॉन 4:23 में लिखा है, 23 and 24, यूहन्ना की सुवार्ता 4:23 और 24 में, गॉड इज सीकिंग फॉर ट्रू वर्शिपर्स। कैन यू रीड इट? आप पढ़ सकते हैं? यूहन्ना की सुवार्ता 4 उसकी 23। हाँ। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा में और सच्चाई में आराधना करेगा तो परमेश्वर पसंद होते। आगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। The Father is searching for such true worshippers। ऐसा सच्चा आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रेज गॉड। क्या आप उसमें से व्यक्ति है परमेश्वर ढूंढने वाला? आत्मा में आराधना करना, मैं वर्शिपिंग द लॉर्ड इन द स्पिरिट। हालेलुया। आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलकर, आमीन, पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से आप आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। तो आपको प्रभु की सानिध्य अनुभव करना है। प्रेज गॉड। गो इन डिवोशन, आमीन, आत्मा में आराधना करे। केवल आप अकेला होगा तो भी आराधना हो सकते है। पिछले दिनों में मैंने बोला यूहन्ना टापू में था, प्रेज गॉड, वहां अकेला है तो भी, आमीन, द डे ऑफ द लॉर्ड यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हम आत्मा में आराधना करने लगा। वहां उनके लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा के साथ उतर के आया, आमीन, आराधना स्वीकारने के लिए। प्यारो, जहां कहां कौन सा भी परिस्थिति में हो, वी कैन वर्शिप गॉड। हालेलुया। पौल और साइलस, आमीन, फिलिपिया की जेल में है, वहां उनको शरीर पूरा खाव हो गया है मारपीट करके, आमीन, उनका हाथ में पांव में हमें जंजीर डाला गया है। अंतगार की समय है, आधा रात की समय में, सब लोग छोड़ा हुआ समय में, दिन भर पत्थर मारा है, बहुत मारपीट मिला है,
लेकिन वो दर्द भरा समय में भी आधा रात में वो प्रभु की स्तुति करने लगा। आपको मालूम है क्या हो गया? स्वर्ग की परमेश्वर जेल में उतर के आया। When you are worshiping God in all the situation, in the odd situation also, praise God, the Lord who loves you, the Lord need worship, he will come to you and give you fellowship. हमारा परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर हमारे पास आके हमें आशीष से भरेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। So God is searching for the true worshippers. Hallelujah. हिब्रू में वर्शिप के लिए प्रोस्कियो करके वर्ड दिया है। प्रेज गॉड, प्रोस्कियो हिब्रू भाषा में उसका अर्थ है टू किस, चुम्मा देना। प्रेज गॉड। सो एवरी वर्शिप वी आर किसिंग द लॉर्ड। हालेलुया। तो किस करना है तो करीब आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। भजन संहिता 2 में लिखा है, आमीन, किस द सन दैट यू मे नॉट पेरिश इन द वे। अब रास्ते में नाश नहीं होने के लिए पुत्र को चुमो। आराधना करने वाला पुत्र को चुमा करने वाला है। So we are true worshippers, worshiping God in spirit and truth, and we kiss the feet of Jesus every day. Praise God. सच्चा वर्षक humbly अपने को समर्पण करके आत्मा की शक्ति से, प्रेज गॉड, हृदय की गहराई से प्रभु का प्यार से भरा हुआ आराधना में करना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, we should become addicted to His presence. परमेश्वर का सानिध्य के लिए हमें एडिक्शन होना चाहिए कि मुझे प्रभु का सानिध्य से बिना मैं नहीं रह सकता। I wanted to experience the presence of God in my life. भजन संहिता 16:8-11 पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर का वचन पढ़ेगा तो परमेश्वर की आशीष डेविड उधर कहते हैं। पढ़िए Psalm 16:8-11। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह, डेविड कहते हैं, मैं यहोवा को निरंतर मेरे सन्मुख रखा है। हालेलुया। सो टू लीड ए होली लाइफ, टू इंटिमेसी विद गॉड, one have to put God ahead of him always. उनके सामने रखना है। प्रेज द लॉर्ड। अब देखते होगा लोग कार के सामने पॉकेट में टेबल में वगैरह छोटा छोटा रूप बना के रखा है। उनकी भावनाएं उनको मिला तो गॉड मिला है। लेकिन प्यारो, हम जीवित परमेश्वर को हमारी आंखों के सामने हमेशा रखना है। डेविड कहते हैं, पढ़िए, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मैं डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मैं मेरी आंखों के सामने परमेश्वर को रखा है। मैं परमेश्वर को मेरे सामने रखा है, इसलिए मैं डगमगाएगा नहीं। मैं प्रेज गॉड राइट साइड में है, मैं इसलिए नाश नहीं करूं, नाश में नहीं जाएगा। आगे पढ़िए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। मेरा शरीर चैन से रहेगा, मेरी आत्मा आनंदित रहेगा। डेविड कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर को मेरे सामने रखा, इसलिए मैं आत्मा आमेन चैन में रहेगा। प्रेज गॉड। इन दिनों में बेचैन की दिनों में प्रेज गॉड प्रभु हमारे साथ है, तो प्रेज गॉड हम आत्मा में आनंदित रह सकते। आगे, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद, जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सानिध्य में क्या है? आनंद की भरपूरी। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द फुलनेस ऑफ जॉय इज देयर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। So if you want to experience the fullness of joy, put the Lord before you. परमेश्वर को आपके सामने रखना। परमेश्वर का सानिध्य आपका राइट साइड में है, आपके लेफ्ट साइड में, आपके आगे है, पीछे है, ये अनुभव करना। प्रेज द लॉर्ड। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर में जो आनंद हमारी ताकत है। तो प्रभु की सानिध्य से मिलने वाला आनंद जैसा आनंद दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। तो आपकी प्रॉब्लम की समय में चैन में रहना है, शांति में रहना है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। प्रभु के करीब आओ, प्रभु का सानिध्य में आओ, प्रभु के सानिध्य में चलो, प्रभु को आगे रखो। योशुआ प्रेज गॉड
मोसेस की असिस्टेंट था। प्रेज द लॉर्ड। मोसेस जब पहाड़ में गया, योशुआ भी चला गया। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। योशुआ तराई में रुका, मोसेस पहाड़ के ऊपर चला गया। परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन वैसे ही योशुआ मोसेस जो करते हो देखते रहा। और हम देखते हो पढ़ा हुआ वचन में 33:7 में हम पढ़ते हैं, वो तंबू छोड़ के कभी नहीं गया। मोसेस तंबू से जा रहा था, परमेश्वर से मिलने के बाद, मिला वाले तंबू से मिलने के बाद मोसेस चला जाता था, लेकिन योशुआ यो तरुण व्यक्ति वो तंबू छोड़ के नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सानिध्य चला गया, फिर भी योशुआ सोचते एटलीस्ट द फ्रेग्रेंस of the presence of God will remain in that temple, I will receive it. Hallelujah. परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का सानिध्य में वो छोड़ा दिया सानिध्य को होगा, प्रेज द लॉर्ड, द फ्रेग्रेंस होगा, वो मुझे अनुभव करना, इसलिए तंबू छोड़ के कभी नहीं गया। परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। बाद में हालेलुया योशुआ के मोसेस के बाद परमेश्वर ने उसको इस्राएल की लीडर करके बनाया। So to have a closer walk with God, we should have a love towards God and we should be addicted towards God. परमेश्वर को मुझे मिलना है, मुझे परमेश्वर का प्रेम से कोई शक्ति अलग नहीं कर सकता। वो कहते हैं who can separate me from the love of God, क्योंकि I am addicted to Jesus। मैं यीशु के लिए ऐसा एडिक्शन आया है, यीशु सिवा मैं रह नहीं सकता। प्यारो, इन दिनों में ऐसा प्यार आपका जीवन में है, प्रेज गॉड। प्रभु को प्यार करो, क्योंकि उसने हमें प्यार किया है पहले। हालेलुया। प्रभु को प्यार देखो, अपना पुत्र देके हमें प्यार किया है। आपने हालेलुया हमारे लिए सब कुछ उसने दिया है। हम प्रेज गॉड प्रभु का दानों को देखो, प्रभु परमेश्वर ने बनाई और धरती में परमेश्वर ने हमें रहने को मौका दिया है। प्रतिदिन की रोटी प्रभु देता है, अब तक संभाला है। अभी कोरोना की वजह से हम थोड़ा परेशान है, लेकिन इस दिनों में भी प्रभु में संभाला है। अब तक हमें संभाला, प्रभु का प्रेम को देखिए, हमें उद्धार किया, प्रभु का प्यार को देख लीजिए, हमें छुटकारा दिया, प्रभु का प्यार को देख लीजिए, हमारे लिए अपना पुत्र देकर हमें प्यार किया, यीशु मसीह का प्यार को देखो। द लॉर्ड हु लव्ड यू by giving his only begotten son, that we should not perish but have everlasting life. Hallelujah. We should be addicted towards God. Hallelujah. Fourth key, we need the favor of God. परमेश्वर का favor हमें होना चाहिए। Praise God. Hallelujah. Favor means blessing of God. प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु के करीब चलना है, प्रभु का सानिध्य में चलना है, प्रभु का आशीष पाना है, प्रभु की कृपा भी हमारे साथ होना चाहिए। फेवर ऑफ गॉड, दिस इज द फेवर ऑफ द लॉर्ड। प्रेज गॉड। परमेश्वर की फेवर की समय है अभी। प्रेज गॉड। सुवार्ता हमारे पास आया, प्रभु की कृपा है। काफी लोगों के पास सुवार्ता नहीं मिला है, लेकिन हम सुवार्ता को अंगीकार किया, एक कृपा है। कृपा मिला वो लोग सुवार्ता को स्वीकारा है। Those people who received the grace, they only can accept Jesus Christ as Lord and Savior. तो यीशु मसीह को दिल से स्वीकारा हुआ लोग धन्य है, आपको कृपा मिला है। स्वर्गदूत मेरी को क्या बोला है? मेरी यू रिसीव फेवर फ्रॉम गॉड, प्रभु की ओर से आपको कृपा मिला है। यीशु मसीह को अपनी पेट में जन्म देने के लिए, अपनी पेट में धारण करने के लिए परमेश्वर ने मेरी को कृपा दिया है। परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया है वो कृपा पाया लोग है। तो कृपा पाया लोग कृपा में बढ़ना है। आमीन। प्रतिदिन कृपा में बढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आनंद मनाते हैं, लेकिन हमें आध्यात्मिक तौर से हम बढ़ता नहीं। हमें प्रतिदिन प्रभु का वचन नहीं पढ़ता, प्रतिदिन प्रभु के संग नहीं चलता, इसलिए थोड़ी देर के बाद हमारी आनंद नष्ट होता है। प्यारो, कृपा बढ़ के आना चाहिए, तो ताकि कृपा के लिए हमें मांगना है। प्रेज गॉड। जो नम्र होते हैं प्रभु की सानिध्य में, वहां कृपा बहते हैं। जो घमंड करते वहां कृपा नहीं बहते हैं। प्यारो, प्रेज गॉड, प्रभु को जो प्रायोरिटी हमें देना है। हालेलुया। हमारे जीवन में पहला पार्ट है, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण करना है। दैट इज आवर प्रायोरिटी। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें उसको ट्रू वर्शिप करना है। हमें वी शुड बी एडिक्टेड टू हिज पर्सन। फोर्थली, वी नीड द फेवर ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु का वचन में लिखा है मत्ती का सुवार्ता, प्रेज गॉड, 5 उसका 6 में, ब्लेस्ड आर द हंग्री, दे शैल बी फिल्ड। प्रेज गॉड। जो
भूखा है, जो प्यासा है, प्रेज गॉड, उसको तृप्त हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए एक भूख और प्यास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि आप भूखा है, प्रेज गॉड, आपको परमेश्वर तृप्त करेंगे। प्रेज गॉड। पांचवा पार्ट है, वचन है, द की टू द प्रेज गॉड क्लोजर वॉक विद गॉड इज नोइंग हिज वे। प्रभु का मार्ग को चलना। हम लोग क्या करते हैं, यीशु के पास आने के बाद, यीशु को स्वीकारने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद, होली स्पिरिट के अभिषेक पाने के बाद हम अपने अपने मार्ग में चला जाते हैं। प्रेज गॉड। हमारी भक्ति केवल संडे एक दिन चर्च में आते समय होता है। प्यारो, ऐसा ना होना चाहिए। एवरी डे वी शुड वॉक विद गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। पाप आने के पहले आदम और हवा, आमेन, परमेश्वर का सानिध्य अनुभव किया। एवरी डे गॉड केम टू गार्डन ऑफ ईडन। हर दिन परमेश्वर आते थे और हर दिन, आमेन, परमेश्वर के साथ लोग जाते थे, बैठते थे, उठते थे, फेलोशिप करते थे। इफ यू आर नॉट हैविंग फेलोशिप विद गॉड एवरी डे, प्रेज गॉड, आपका आध्यात्मिक जीवन कमजोर होता है। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति दररोज फेलोशिप करते प्रभु के साथ, आ व्यक्ति धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम अभी जूम मीटिंग के द्वारा भी मीटिंग संडे, प्रेज गॉड, कभी कभी 76, 70, 56, 66 ऐसे लोग आते हैं, लेकिन ट्यूसडे और थर्सडे में 40, 45, 50 तक लोग आते हैं। बाकी लोग कहाँ जाते हैं? प्यारो, प्रेज गॉड, आपको एक भूख होना चाहिए, प्रभु के लिए प्रायोरिटी देना चाहिए। ऐसे ही प्रॉब्लम के समय में हम रहते हैं। हम परमेश्वर की सानिध्य में रहने के लिए प्रभु ने हमें चुना हुआ लोग हैं। बहुत मुश्किल की समय है। आगे कितने दिन हमें आगे मिलेगा हमें पता नहीं। वी डोंट नो व्हेन कोरोना विल गो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज के मैसेज में सुनकर डर गया। ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा, वर्ल्ड कहते हैं हमारे पास 2.5 लाख लोग बीमार है। 2.5 लाख नहीं, 2.5 करोड़ लोग के ऊपर बीमार है। लोग चकित होने लगे उनका डिक्लेरेशन से। तो डेटा पूरा लोग कवर करके 1/10 बता रहे, लेकिन उससे ज्यादा बीमार लोग दुनिया में है करके वो कहते हैं। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डरने लगा। तो इस प्रकार की बीमारी बढ़ेगा तो कितना लोग मारेगा, कितना लोग जिएगा, हमें पता नहीं। हमारा सबका प्लान चौपट किया है ये कोरोना जो बीमारी से। इसके से हमें सीखना है। प्रेज गॉड। लास्ट डेज आया है, यीशु मसीह का आगमन नजीक आया है। प्रभु का भक्तों को प्रभु संभाल रहा है और यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आएगा। यीशु मसीह का राज में आपको मुझे लेके जाएगा। ये आशा में हमें बढ़ते जाना है। गॉड इज प्रिपेयरिंग हिज पीपल, हिज ओन पीपल। सो गॉड वांटेड दैट वी शुड कम क्लोजर टू गॉड। ये जो परीक्षा की समय में भी, प्रॉब्लम की समय में भी हम प्रभु के करीब आना है। जैसा योग की जीवन में प्रश्न बहुत आया। योग कहते हैं यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा की नाम महिमा हो। एक्चुअली योग गलत बताया है। यहोवा ने दिया, शैतान ने लिया है, यहोवा नहीं लिया। देखो, आपको जो ब्लेसिंग परमेश्वर दिया है, परमेश्वर कभी आपका ब्लेसिंग नहीं निकालता, लेकिन आपका ब्लेसिंग चुराने वाला शैतान है। क्योंकि बाइबल कहते हैं शैतान आते हैं, चोर आते चोरी करने के लिए, खाक करने के लिए, खत्म करने के लिए। यीशु आते हैं जीवन देने के लिए, समर्थ जीवन देने के लिए। प्रेज गॉड। अय्यूब सोचा ये प्रेज गॉड परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, प्रभु की महिमा होने दो, लेकिन उसको मालूम नहीं था। प्रेज गॉड। ये प्रेज गॉड, ये परमेश्वर नहीं, शैतान ने उसको ब्लेसिंग चुराया। आपको देखते हैं शैतान अय्यूब का ब्लेसिंग चुराया है। तो आपकी जीवन की ब्लेसिंग परमेश्वर नहीं चुराया है, लेकिन परमेश्वर अलाउ किया है। So remember that if you lost your job, if you lost your praise God will or anything what you lost, it is not because of God but because of Satan. But praise God, God is still faithful. He will give whatever loss you have. आपको जो नुकसान हो गया उसे ज्यादा बेहतर रीति से प्रभु देने वाला है। तो प्रभु को धन्यवाद करो। ये प्रॉब्लम के बीच में योग कभी पीछे नहीं गया, योग कभी पाप नहीं किया।
यो कभी फेलोशिप बंद नहीं किया, प्रेज द लॉर्ड। उनका प्रिय मित्र भी आके कहने लगा, समथिंग रॉन्ग विथ यू जॉब, कन्फेस इट, गॉड विल ब्लेस यू। ही सेड नो, वन डे आई विल प्रूव दैट आई एम राइट, हालेलुया। उसने प्रूव किया, परमेश्वर की स्तुति हो। जो कुछ नष्ट हो गया सब कुछ परमेश्वर उनको वापस दिया। लास्ट 42 में वो कहते, चैप्टर में कहते हैं, मैंने परमेश्वर के बारे में केवल सुना था, लेकिन नाउ आई कैन सी हिज प्रेजेंस विथ माय ओन आईज। मैं प्रेज गॉड परमेश्वर को देख सकते। तो इस विपत्ति के समय में भी प्रभु यीशु का ब्लेसिंग आपके लिए इंतजार करता है। तो नुकसान, मुश्किल, बीमारियां, आपके जीवन का जो परेशानियां प्रभु के ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है, लेकिन प्रभु ने परमिट किया है आपके जीवन में वो आने के लिए, क्योंकि गॉड वांट टू शो Satan that you are not an ordinary person, but you are truly following God. This is the time to prove that what we believed is right. Our faith is, praise God, very strong, and we believe that Jesus is alive. हम यीशु जीवित है ऐसा विश्वास हम करते हैं। हमारा विश्वास सच है, ये प्रकट होने का समय है, इसलिए यीशु के करीब आओ और विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। We need know his ways. Praise God. Punch about it we want to know his ways. Praise God. Hallelujah. Psalms 103 उसका 7 में हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 103 उसका 7, God made his ways known to Moses and his acts to Israel. Praise God. पढ़िए हिंदी में। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। Yes. आगे परमेश्वर ने मोसेस को और आरोन को परमेश्वर की योजना को प्रकट किया है। Praise God. The same God is ready to reveal his plan to you and me if you are coming closer to God. Aaron परमेश्वर का प्रीस्ट है, मोसेस अभिषिक्त है। मोसेस प्रभु की सानिध्य में जब आएगा, प्रभु आगे क्या करना है, पानी नहीं है, क्या करना है, प्रभु बोलते हैं पत्थर पर रोक को मारो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोसेस जाके बोलते हैं प्रभु समुद्र है, क्या करना है, परमेश्वर बोला है छड़ी को आगे बढ़ाओ। So every day's guidance God given to Moses. हालेलुया। और कैसा चलना है, कैसा चलाना है, ये जो मार्गदर्शन परमेश्वर मोसेस को एवरी डे एवरी टाइम देता था। तो हमें भी प्रेज गॉड परमेश्वर की सानिध्य में गया तो प्रतिदिन की रोटी के लिए, प्रतिदिन का समस्या के लिए उत्तर जरूर देगा। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। प्रेज गॉड। सिक्स्थ की टू इंटीमेसी विद गॉड इज सीक हिज ग्लोरी। उनकी महिमा को देखेंगे। प्रेज गॉड। उनकी महिमा, प्रभु की महिमा होना हमारे जीवन में। ग्लोरी टू गॉड इन द हाइस्ट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो प्रभु की सानिध्य में आया तो हमें भी प्रभु महिमा देते हैं। प्रेज गॉड। मोसेस 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की सानिध्य में बैठा। जब वो वापस आया पहाड़ से, हाथों में प्रेज गॉड 10 कमांडमेंट है, वो लेके आया, उनकी चेहरा चमकने लगा। प्रेज गॉड। 40 दिन भूखा था, 40 दिन प्यासा था, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, शरीर कमजोर होना चाहिए, लेकिन लोग देखा है मोसेस की चेहरा चमक रहा है। इन द टाइम ऑफ ट्रबल लेट द फेस ऑफ एवरी बिलीवर शुड शाइन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदरो, दानियल ऐसा लोग सादा भोजन खाया, केवल भाजी खाया और पानी पिया, लेकिन उनका चेहरा ज्यादा चमकने लगा, क्योंकि चमक और रौनक प्रभु देते हैं। हालेलुया। We have to seek his will, his kingdom, his glory. प्रभु की महिमा को हम ढूंढना चाहिए। ग्रीक वर्ड ग्लोरी के लिए डॉक्सा करके लिखा है। डॉक्सा, doxa means brilliance or radiance. Praise God. The glory of God brings intimacy and revelation of God's realm. Praise God. परमेश्वर का सानिध्य की जो महिमा में हम आएगा, हमें भी परमेश्वर प्रेज गॉड चिन्ह, चमत्कार
और मिरेकल्स और अद्भुत कार्य करने के लिए इस्तेमाल करेगा. More intimacy means, praise God, more glory will be revealed. Moses was 40 days in the presence of God and his face shined like a sun. More intimacy will bring more glory. Less intimacy, less glory. No intimacy, no glory. तो यीशु मसीह के करीब बैठा हुआ चेले लोग का भी चेहरा भी वो चमकने लगा. प्रभु की स्तुति हो. यीशु मसीह जो ट्रांसफिगरेशन माउंट में गया था, वहां मोसेस और एलिया उतर के आया. वहां परमेश्वर की महाग्लोरी हम आपके यीशु मसीह पर. प्रभु की स्तुति हो. स्टीफन के ऊपर लोग पत्थर मारा था, लेकिन प्रभु के करीब आया हुआ प्रभु का दास की चेहरा चमकने लगा. जो एक एक पत्थर उनकी फेस में जो आते हैं, खून निकलते हुआ भी लोग क्या देखा है, स्वर्गदूत के समान उनकी चेहरा चमकने लगा. तो प्रभु की महिमा हो. हम प्रभु के करीब आएगा तो ज्यादा ग्लोरी परमेश्वर हमें देगा. द सेवेंथ की इज सीक हिज फेस, लिसन व्हाट गॉड सेज. हम परमेश्वर की चेहरा को ढूंढो और से व्हाट गॉड इज स्पीकिंग एंड ओबे व्हाट कमांड्स. परमेश्वर जो भी बातें कहेगा वो सुनने के लिए एक हृदय में होना बहुत जरूरी है. The availability to hear what God is saying, to see what God is doing, to move in the realm of miracles, all these will develop an intimacy with God. प्रभु की महिमा हो. The ability to hear what God is saying. क्या आप प्रभु की वाणी सुन रहे हैं? यीशु कहते हैं, My sheep hear my voice. मेरा भेड़ मेरी वाणी सुनता है. प्रेज गॉड. कितने लोग यीशु की वाणी सुन रहा है? प्यारो, प्रभु का वचन, परमेश्वर का दास लोग आपसे बात करते समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. मोसेस परमेश्वर की सानिध्य में बैठा. मोसेस परमेश्वर से वचन प्राप्त किया. मोसेस जाके इस्राएल लोगों को कहा, इस्राएल लोग कहा वैसा ही हम करेंगे. So when we the leaders, pastors, प्रचारक वचन आपको देगा, ऐसा ही नहीं आते. ये जो मैसेज कल 2 दिन से मेरी माइंड में, मेरे को मैसेज का कुछ भी रूप नहीं था. क्या बोलना, क्या कैसा, ओनली प्रभु का प्रेजेंस में कैसा बैठना, ये विषय मेरी माइंड में आया. मैं सोचने लगा, मेरी सोच और प्रभु की सानिध्य में प्रेयर करके मैं जो निकाला, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है, तो मैं प्रभु से प्राप्त कर आपको दिया है. तो ये मेरा कुछ भी क्रिएशन नहीं है इसमें. इट इज ओनली द लॉर्ड्स वर्ड. प्रेज गॉड. हाउ टू have the intimacy with God. प्रभु से कैसे इंटीमेसी प्राप्त करना है, तो हमें प्रेज गॉड ऐसा एबिलिटी होना है. What God says I will listen. प्रभु का हर भक्त लोग ऐसे सुने. पत्रुस बोला, तेरी वर्ड के लिए मैं जाल डालूंगा, तो मिरेकल पाया है. यीशु ने जिनको बुलाया वो लोग सब यीशु के पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़ के. तो हम यीशु के लिए यीशु की वाणी सुनकर आगे बढ़ेगा तो उनका महान सानिध्य आपके साथ रहेगा. और गॉड विल रिवील हिज सीक्रेट विद अस. अब्राहम ओबेड गॉड. परमेश्वर ने बोला, ये सब कुछ छोड़ के मैं जो दिखाने वाला देश में चले जाओ. प्रभु का वाणी उसने ओबे किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष से भरा. आज भी अब्राहम का नाम सारे दुनिया में मशहूर है. प्रभु की महिमा हो. Because he obeyed God. If you obey the voice of God, hearing it very clearly and obeying each and every word you are hearing, then you can spend your time in the closeness of God. प्रभु की सानिध्य में अब बैठ सकते हैं. यीशु मसीह कैसा मिरेकल किया आपको मालूम है. यीशु ने कहा है, मैं जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, मैं जो वचन देते मेरा नहीं है, मेरी पिता से जो सुना है वो वचन में तुझे भी दिया है. प्रेज गॉड. पिता के बिना पुत्र कुछ नहीं कर सकता. यीशु ने कहा, पुत्र पिता ने जो किया हुआ बातें देकर सीखा है, और पिता जो दिया है वही वचन पुत्र ने दिया. एवरी डे की फेलोशिप में
पहाड़ में जाकर रात में पूरा दिन प्रार्थना में पिता से संपर्क कर कर यीशु मसीह जब वापस आते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, मुर्दा जिंदा होते थे, बंधन टूट जाते थे, शैतान भाग जाते थे, पापी लोग उद्धार पाते थे। चिन्ह चमत्कार वहां हो गया क्योंकि पिता परमेश्वर से प्राप्त कर कर परमेश्वर का वचन आमीन यीशु मसीह लोगों को दिया। पौल कहते हैं मैं प्रभु से प्राप्त करके तुम्हें दिया है। This morning I want to encourage you. This word what you are listening is received from the Lord. मैं प्रभु से 2 दिन आमीन घुटने में बैठकर प्रार्थना करके काफी बार रोने के बाद परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ वचन है, इसमें अभिषेक है, इसमें प्रभु का गाइडेंस है, इसमें गॉड का ब्लेसिंग है। अब नाराज में जाने का जरूरत नहीं। गॉड इज लविंग यू। परमेश्वर आपको प्यार करते, अपना पुत्र को देकर आपको प्यार किया है, आपको प्रभु की कृपा मिला है, प्रभु का फेवर आपके पास आया है, प्रभु ने आपको चुना है, अब तक प्रभु की कृपा पाया है, लेकिन प्रभु में नहीं बढ़ा हुआ एक गलत एवरीडे प्रभु के सानिध्य में चला नहीं है, ऐसा एक गलत आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है। तो आप कबूल कर कर प्रभु एवरीडे आपका फेलोशिप में हम नहीं रहा। आप जहां कहा हो अब परमेश्वर का सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है। प्यारो प्रेस गॉड, प्रभु का उपकारों को ना भूलना। मैंने एक स्टोरी सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी लद्दाख में अपना कोई सेना एक मेजर के साथ चल रहा था, वहां आतंकवादी लोग काम कर रहे थे, उधर बर्फ से भरा हुआ जगह था। ये मेजर के साथ 15 सोल्जर्स थे, वो लोग चल के जा रहा था, रोड में पूरा बर्फ था। तो वो 2-3 घंटा वो चल के समय वो लोग इतना ठंडी से भर गया, शरीर कांपने लगा। सब लोग बोला आगे जाना बहुत मुश्किल है, कुछ गर्म कुछ चीज मिल गया तो अच्छा है, कुछ चाय मिला तो, लेकिन कोई चाय देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था उधर। तो रास्ते में जाते वो देखा, एक चाय की दुकान देखा, तो उन लोग बहुत खुशी से गया, देखो एक चाय की दुकान लग रहा है, वहां जाके देखेंगे। लेकिन वहां हम गया तो वो चाय की दुकान बंद था, लॉक था। लोग बहुत नाराज हो गया। तो उन्होंने सोल्जर्स ने बोला ये लोग तोड़ के हम देखेंगे अंदर कुछ सामान है क्या। लेकिन मेजर बोला ऐसा करना गलत है, क्योंकि हम लोगों की प्रॉपर्टी को सुरक्षा देने वाला, उनको लूट करने वाला लोग नहीं है। लेकिन लोग बोला सर हमें आगे जाना है, तो हमें जीवन है तो हम लोगों को संभाल सकते हैं, लेकिन हम मार जाएगा अगर ये कुछ गर्म कुछ चीज नहीं मिला तो, एक चाय मिला तो बहुत उपकार होगा। तो जो भी है हम अंदर देखेंगे। फिर मेजर ने एग्री किया और वो लोग तोड़कर अंदर गया, तो अंदर जब देखा है टेबल है, वहां चाय पत्ती है, वहां दूध की पाउडर रखा है, शुगर भी है, और वहां स्टोव भी है। तो उन्होंने वो स्टोव जलाकर पानी लेकर वहां प्रेस को पाउडर लगा के चाय पत्ती डालकर चाय अच्छा बनाया। ग्लासेस भी थे वहां, वो लोग 15 लोग चाय पिया। और देखा तो बाजू में बिस्किट की एक डब्बा देखा, वो बिस्किट भी वो लोग तोड़ के खाया, तो उनको जीवन आया, प्रेस गॉड, और वो आगे चलने लगा। लेकिन मेजर की दिल में बहुत दुख आया, हमने चोरी किया है, एक्चुअली हम बिना परमिशन में उनका लोग तोड़ के अंदर गया है, उसको नुकसान पहुंचा है, उनकी एक गरीब इंसान है, उनका प्रॉपर्टी को हमने लूटा है। तो उसने उसकी कॉम्पेंसेशन के लिए एक 5,000 रुपया वहां वो शुगर की पोर्ट में रखा, 1,000 रुपए की 5 नोट वहां हम रखा, और वापस आके वो चला गया लोग तोड़ा हुआ अवस्था में। वो उनका मिशन के लिए चला गया, 15 दिन आगे गया, वो लड़ाई में वो आतंकवादियों को उसने मार डाला और वापस आया। वापस आते वो दुकान खुला था, वो खुला हुआ दुकान में अंदर आया, तो ये 15 सोल्जर और ये मेजर अंदर गया और उनको उनसे चाय लिया, बिस्किट वगैरह लिया, और उसको पूछा क्या हो गया, हम लोग आते वक्त हमने एक गलती किया है, ये लोग तोड़ के अंदर घुस के चाय बना के पिया है, आप कहाँ था। उसने कहा आतंकवादी लोग आके हमको तकलीफ दिया, हमारी बेटे को मारा, मेरे बेटे को पाँव फ्रैक्चर हो गया, उसको लेके मैं हॉस्पिटल में गया था, वहां उसका मलहम पट्टी बांधा, उनको फ्रैक्चर प्लास्टर किया, लेकिन मेरा प्रभु दयालु है, परमेश्वर जीवित है, इसलिए आज हम जीवित है बोला, मेरा बेटा भी जीवित है। तो सोल्जर बोला अरे परमेश्वर है नहीं, कुछ नहीं, परमेश्वर है तो आपको इतना हालत क्या, ये सुनसान जगह में आप चाय की दुकान बनाते हैं, सिर्फ गांव वाला कभी आए तो आपको कुछ मिलता है, आप इतना गरीब है,
और आपके ऊपर, आपका बेटे के ऊपर अत्याचार भी हो गया है, पाव भी तोड़ा है, तो आप बोलते प्रभु जीवित है, ऐसा परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन उसने बोला साहब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, परमेश्वर है, मैं उसके लिए विटनेस है। बोला क्या बात है? बोला मैं हॉस्पिटल में मेरे बेटे को गया, मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे बोला पैसा लेके आओ, लेकिन पैसा के लिए मैं कहा जाऊं, इधर उधर आया, किससे पूछा, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। मैं दुकान में आया, बहुत रो रो के, परमेश्वर मेरे बेटे के लिए मुझे पैसा चाहिए, 4,000 रुपया मुझे चाहिए, कहां से मैं रहूंगा। मैं जब शुगर की बोतल खोल के 5,000 मिला, मुझे 4,000 का जरूरत था, 5,000 मिला। ये मेरा प्रभु छोड़ के दूसरा कोई नहीं, मेरा प्रभु मेरा दुकान को लोग तोड़ के अंदर आके पैसा रखा। हालेलुया, प्यारो, प्रेज गॉड। हमें मेजर ने बोला सही है, मेरे अंदर इतना प्रेरणा परमेश्वर ने दिया कि वो 5,000 रुपए उस करेगी, ताकि आगे भी हमें वो मटेरियल लेके चाय की दुकान चल शुरू कर सकते। प्रभु की स्तुति हो। Our God is a God who providing in this way. हमारा परमेश्वर इस प्रकार हमारे लिए रास्ता खोलने वाला प्रभु है। Praise God, हालेलुया। तो हम परमेश्वर की वाणी सुनना है। यीशु जैसा पिता के संग में रहा, वैसा हमें भी सुनना है। Praise God. We should grow. Secondly, we should grow in wisdom. Praise God. Luke 241 250 में हम दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह 12 साल की थे, 10 साल का थे, वो मंदिर में जग गया। वहां शास्त्रियों को, न्याय लोग की लीडर्स को, प्रीस्ट लोगों को, बाइबल की जो ज्ञानियों को, शास्त्रियों को यीशु बात कर रहा था, तर्क कर रहा था, विवाद कर रहा था। ही वाज क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो परमेश्वर की स्तुति हो। तो इसका नॉलेज और विजडम देके लोग चकित हो गया। प्यारो, हमारा भी जीवन में प्रभु का, प्रेज गॉड, नॉलेज और विजडम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रभु की स्तुति हो। You should have a listening habit. Praise God. Hallelujah. मोसेस को परमेश्वर ने बात किया। हम नंबर्स 8:1 और 9:1 में पढ़ते हैं, परमेश्वर मोसेस से बात किया, परमेश्वर मोसेस से बात किया। ऐसा काफी वचन में लिखे, परमेश्वर मोसेस से बात किया। तो परमेश्वर हमसे भी बात करते हैं। परमेश्वर पौल से बात किया, परमेश्वर पीटर से बात किया, परमेश्वर अपना भक्तों से बात करते हैं। अब्राहम से बात किया परमेश्वर, मुझसे भी बात करना चाहता हूं, लेकिन सुनने का एक कान हमें होना बहुत जरूरी है। मोसेस स्पोक विद गॉड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर बात करते हैं, मोसेस भी बात करते हैं। सो कम्युनिकेशन, इंटीमेसी में गॉड के करीब हम आएगा तो प्रभु जो बातें करते हैं वो सुनने का एक हमें डिजायर हमारे जीवन में होना चाहिए। We should listen what God says. When we obey the word, whatever we pray, whatever we say, praise God, God will answer. यदि प्रभु का वाणी हम सुनेगा तो परमेश्वर हमारा वाणी सुनते हैं। It is a two-way communication. Hallelujah. Now the Holy Spirit is near to you. पवित्र आत्मा आपके करीब है। हम प्रभु के करीब आया तो परमेश्वर की आत्मा हमें भरेगा। तो हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा की भरपूरी में, शायद एक रूम में हो आप, प्रेज द लॉर्ड, अकेला हो, आप पवित्र आत्मा से बातें कर सकते हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। दिस इज द पैटर्न। लॉर्ड स्पीक टू मोसेस and Moses speak to Israel. Israel did as Moses commanded. Hallelujah. तो वैसे ही हम लोग भी प्रभु का वाणी सुनना है। तो what we have seen is we should have a tent meeting. Praise God. प्रभु से मिलने के लिए एक तंबू हमारे लिए होना है। वहां मैं जाएगा टाइम में, प्रभु वो टाइम में आएगा। हालेलुया। वहां बादल आएगा, वहां परमेश्वर बातें करते हैं। सो प्रॉब्लम के बीच में आप दूर मत जाइए, जहां आप बैठा है वहां प्रभु के लिए एक तंबू खड़ा कीजिए। गो एंड मीट द लॉर्ड इन प्रेयर रूम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। सच्चाई में प्रभु की आराधना करे।
become addicted to the presence. प्रभु का सानिध्य के लिए एक एडिक्शन, एक डिजायर होना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। मैं प्रभु मेरे लिए, मेरा प्रभु, मुझे प्रभु को मिलना है। जैसा मरियम की हृदय में डिजायर था, मुझे आमीन प्रभु को, शरीर को देखना है, ऐसा एक डिजायर आपकी जीवन में है। वी शुड नीड द फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर हमको कृपा देते हैं, कृपा के लिए मांगो, कृपा के लिए तड़प के जाओ, प्रभु कृपा देते हैं। हमें प्रभु की रास्ता को जानने के लिए बहुत बड़ा इच्छा होना चाहिए। आपकी फेस, प्रेज गॉड, हालेलुया, शाइन होना चाहिए कृपा से। आमीन। ऐसा एक डेवलप आपका जीवन में होना चाहिए। लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, ग्रो इन विजडम। आमीन। लिसन टू व्हाट द सर्वेंट्स ऑफ गॉड सेज। दिस पैटर्न में आप गाएगा, प्रभु से प्रार्थना करें, लॉर्ड अलो मी टू स्टे विथ यू, अलो मी टू हियर व्हाट यू से। प्रभु जो बोलेगा मैं सुनेगा। और जो कुछ गलती हमारे जीवन में हो गया, हम प्रभु से माफी मांगेंगे। हमें दर रोज प्रभु की सानिध्य में चलेंगे। प्रभु हमसे चाहता हूं, एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड शुड स्पीक टू हिम, एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड शुड वॉक विथ हिम, एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड शुड कम्यून विथ हिम, प्रे टू हिम। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को नम्र कर कर, पाप की कबूल कर कर, केवल हमें पाप हमें दूर होते। इतना प्यार किया परमेश्वर, अपना पुत्र दे के प्यार किया परमेश्वर, हमें आशीर्वाद जरूर करेगा। मेरे जीवन में, मैं जो पुणे में आया, मैं EU का मीटिंग में जाते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स की मीटिंग में जाते थे। वहां हम लोग सेंट पॉल्स चर्च में इकट्ठा होते हो, एक गीत वहां गाते थे। वो गीत मुझे बहुत टच हो गया, मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे प्रभु के करीब लाया हुआ एक गीत है, वो गीत मैं गाना चाहता हूँ। जस्ट ए क्लोजर वॉक विद दी, ग्रांटेड जीसस इज माय प्ली। मैं गाना चाहता हूँ, मेरा ट्यून इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं गाना चाहता हूँ। जस्ट ए closer walk with thee, granted Jesus is my plea, daily walking close to thee, let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as I love, as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके करीब, क्लोसर क्लोसर एंड क्लोसर टू यू. കർത്താവേ, അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് അടുത്ത് ഇരിപ്പാൻ നീ കൃപ നൽകണമേ. യുവന്ന प्रभु के करीब बैठा वैसे ही एवरी डे वॉकिंग क्लोजर विद गॉड. कितना लोग चाहते हैं इस प्रॉब्लम की समय में प्रभु हमें छोड़ा नहीं है, प्रभु नहीं देखा, ऐसा नहीं है. He knows everything. He knows your suffering. He knows your tension. He knows your need. He knows your agony. But he is ready to save you. प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं. उनकी हाथ कमजोर नहीं हो गया है, वो खुदा है, आपको बनाया परमेश्वर है. उनसे सब कुछ हमें पॉसिबल है. लाल समुद्र को दुबागा परमेश्वर, पत्थर से पानी निकला हुआ परमेश्वर, मोसेस की प्रार्थना सुनकर आशीर्वाद दिया परमेश्वर. कहते मेरे लिए तंबू खड़ा करो, आई विल कम एंड मीट यू देयर. हालेलुया, दीराबा शखरिया, हालेलुया. प्रार्थना करेंगे, लेट्स प्रे. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं आज की सुंदर समय के लिए. हम प्रार्थना के लिए आपके सानिध्य में आया है परमेश्वर. आज आपने हमसे बात के इसलिए धन्यवाद. कल दिन में और रात में आपने ही वचन के द्वारा मुझसे बात किया. मैं आपके सानिध्य में नम्र कर आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, मेरी भाई बहनों को, मेरे बच्चों को, आज जो वचन सुना हुआ सबको आपके करीब रहने के लिए कृपा कर. जैसा मोसेस हालेलुया आपके लिए एक तंबू बना के प्रतिदिन आपके पास आता था, जैसा जोशुआ
तंबू छोड़ के नहीं गया, वहां तंबू में रहकर प्रभु का सानिध्य अनुभव किया, वैसा ही आपके करीब आने के लिए हमें कृपा कर। हमारे चेहरे में एक उदासी का अनुभव निकाल कर आनंद से आप हमें भर दे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, हम अपने आप को नम्र कर कर आपकी वाणी सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए, आपके वचन को पालने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु दया कर, कृपा कर, वचन सुनते वक्त कठोर न होना है प्रभु। हमारी चेहरे में एक्सप्रेशन दे, वो वचन को हम ग्रहण कर रहा है, हम आनंद से वचन ग्रहण करने वाला हमें बना दे, खुशी से प्रभु का वचन हमें सिखाने के लिए हमें सहायता कर, हमें सच्चा आराधक बना दे, आत्मा में सच्चाई में आपकी आराधना करने के लिए आप हमें कृपा दीजिए। हमें आपके लिए एक एडिक्शन हमें दे, प्रभु का सानिध्य मुझे चाहिए चाहिए। हालेलुया, प्रभु को प्यार करने की हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, प्रभु का फेवर के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, हमें प्रभु का रास्ता, प्रभु क्या चाहते हैं ये जानने के लिए कृपा में दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए कान में दे। प्रभु अपने आप को हम समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं सुना हुआ सब लोग आपकी करीब आने के लिए कृपा कर, क्योंकि आखिरी के दिन में आया है, आप जल्दी आने वाला है आपके लोग आपके पास लेके जाने के लिए। हमारा दुख खुशी में बदलने वाला है, अब जल्दी से जल्दी इस धरती को छोड़कर आपके करीब आएगा। इस बीमारी के से हमने डरेगा प्रभु, क्योंकि आप हमारे संग है। ये परीक्षा आपने नहीं करता, शैतान ने हमें सता रहा है, लेकिन आप हमें कृपा देंगे, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता। सारा आदर गौरव महिमा आपको हम देते हैं वचन के द्वारा बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। वचन को ग्रहण कर कर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एवरीडे प्रभु के करीब बैठने के लिए हम सबको सहायता कर। सारा आदर गौरव स्तुति धन्यवाद आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में मिलके प्रार्थना करते हैं, दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात किया है। ये वचन को ग्रहण करके प्रेस गॉड बार बार सुन के प्रभु की गौरव कीजिए। आमीन। हाल प्रभु के संग चले। गॉड ब्लेस यू।